Rajiv Gupta. I work for Coca-Cola Company and I head internal controls for India and Southwest Asia. Have a big responsibility, where we work on designing controls, we work on putting fraud detection as well as prevention controls in place, very much in line with what Manoji and Alokji were just sharing. So what SFIO is doing for entire... So my presentation is having some of the glimpses of what we have learned so far and how you can also use some of those tools and techniques maybe for your current clients or for the future clients. By the time presentation is coming on the screen, quick discussion on Ranbaxy. Anybody working or was working in Ranbaxy or has moved to Sun Pharma now? Anyone? Or directly related to Ranbaxy? Anyone? See, Ranbaxy is one of those companies which I used to love. Because I was a big fan, I am still a big fan of Salman Khan sir, and he used to advertise Revital. And few years back I used to feel कि Revital खाएंगे तो शायद हम भी I will also become something like Salman Khan in terms of physique. I am wearing this just to hide why I am not looking, how I am not looking like him. And then I got to know what Ranbaxy did, and I realized कि exercise तो करते हैं, Revital पे जो trust किया था वो थोड़ा सा गड़बड़ा गया. Is mixture of Hindi is also okay? Because in Karnataka I am from Bangalore, so there I can't. That side it's difficult to mix English and Hindi. So what I am going to share with you for Ranbaxy said 3-4 points. Point number 1. हम जितनी भी medicines बनाते हैं, they are never tested. They are never tested. This is not what I am saying. This is in published domain. आप Google करिए आपको मिल जाएगा. Best Sentinel Award 2014 का उनको जब award मिला. This is the interview, and this is so. What I am going to say next 3, 4, 5 minutes is something which she has proved with evidence to FDA in US, and that is why Ranbaxy pleaded guilty. कोर्ट ने नहीं बोला, Ranbaxy ने कहा अरे इतने एविडेंस आ गए अब तो लीड कर लेते हैं तो आगे का खर्चा पानी नहीं होगा. And I think $600 million, something like that. They agreed themselves. They said हमसे ले लो but केस खत्म करो. We agree to all this what Mr. Thakur is saying. So this is what I said is point number 1, which he proved. Our products. Yes, you got director projects. Best Sentinel Award, which is like for best whistleblower. बिना डरे सच्चाई का पर्दाफाश. Second thing he proved कि जब भी FDA वाले आते थे for testing their products, हम black market से सैंपल खरीदते थे of our competitors. क्योंकि FDA को कुछ तो दिखाना है, हमने खुद तो टेस्ट ही करी नहीं, तो FDA वाले को क्या दिखाएंगे? तो हम ब्लैक मार्केट से सैंपल खरीदते. ये तो चलो हो गया. डॉक्यूमेंटेशन का क्या करते हैं? 2 चीजें फार्मा इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है. आप एफडी को इतनी इजीली बेवकूफ नहीं बना सकते हो. नंबर 1, आपने जो मेडिसिन बनाई है, जो लॉन्च करी है, आपको उसका एक्सट्रैक्ट रखना होता है. तो उसका तो उन्होंने बता दिया, हम ब्लैक मार्केट से खरीदते थे. पूरी दुनिया में ब्लैक मार्केट हब्स अवेलेबल है जहां पर रात में आपको एक्सट्रैक्ट मिल जाता है. तो ऐसा नहीं है कि यूएस से शिप होगा तो आपको 24 घंटा लगेगा. उन्होंने मिनी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बना रखे हैं, मिनी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स, ताकि आपको झंझट नहीं हो. आपको शाम को किसी ने बोला कि सैंपल दिखाओ, आप बोलो सर आप शाम हो गई है, मैं अपने वेयर हाउस से निकालूंगा बिकॉज वी हैव कोल्ड स्टोरेज, अट्रम शट्रम व्हाटएवर. तो वहां से लाने में, और हमारा पूरा डॉक्यूमेंटेशन अप्रूवल प्रोसेस है, लाने में सुबह तक तो हो ही जाएगा. इतना तो क्या, हम तो 1 हफ्ते तक का टाइम मान जाते हैं. एज ऑडिटर हम जब सैंपल देते हैं कि ये सैंपल वी वांट टू रिव्यू, और ऑडिटिंग वहीं से ठीक है 2-4 दिन में मिल जाएगा, थोड़ा ना हम डाउट करते हैं. नहीं करते. क्यों मैडम डाउट करते हैं? नहीं करते. तो रात में सैंपल मांगा, सुबह सैंपल मिल जाता था. तो FDA नेवर
डाउटेड देयर इंटेंशंस। तो सैंपल तो निकल गया। पेपर भी हमने सालों से देखा है, वो टू प्रैक्टिस इयर्स अगो। कोई पेपर है जो आज बनाया, इफ यू वांट टू शो इट एज ओल्ड, तो क्या करना है? थोड़ा बाहर जाएंगे, पेपर को थोड़ा सा मिट्टी में फेंक देंगे, थोड़ा सा उसके ऊपर पैरों से मिट्टी डाल देंगे, या नहीं तो अभी थोड़ी देर में चाय सर्व होगी तो चाय का थोड़ा सा गीला वाला कप रख देंगे ऊपर, या थोड़ा उसको क्रम्बल कर देंगे, थोड़ा डस्टबिन में फेंकेंगे, फिर निकाल के फाइल में लगा देंगे। बड़े सारे तरीके हैं, मैंने भी देखे हैं, आपने भी थोड़े बहुत शायद देखे होंगे। आपका क्लाइंट अगर वैसा होगा जैसे मेरे क्लाइंट थे। Ranbaxy said we are so sophisticated, यार राजीव, what you are talking about? हम भी बनाते हैं कागज, लेकिन they had something called steam rooms। सर क्या था? Steam room। So they had a room, जैसे आपका सोना एंड स्पा होता है ना, तो उसके बाहर रेगुलेटर लगा होता है। इनके पास भी कमरा था जिसके बाहर रेगुलेटर लगेगा। वो रेगुलेटर घुमाओ, जितने साल पुराना कागज दिखाना दिखा दो। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा सर, इट्स रियल, इट्स फैक्ट, इट्स दे हैड समथिंग। एंड व्हेन आई रेड दैट, तो मैंने कहा भाई ये सब करने की क्या जरूरत थी? यू शुड हैव बेटर इन्वेस्टेड दिस मनी इन मेकिंग द रियल मेडिसिन। तो आज कंपनी बंद नहीं होती थी। तब रियलाइज हुआ कि रीवाइटल पे जो पैसा खर्च किया वो गया कहाँ? मेडिसिन तो कभी टेस्ट करी नहीं, उसमें रियल कंपोनेंट गया तो मेरी किस्मत, नहीं गया तो भी मेरी किस्मत। सो इट्स लक, इट्स लाइक अ लॉटरी। दिस इज समरी। और भी आपको इंटरेस्ट लेना है और भी मजा करना है तो प्लीज शाम को गूगल करिएगा, उस पर पूरा पीडीएफ निकल आएगा। आप वो पीडीएफ पढ़िए, बहुत ही इंटरेस्टिंग। वो कैसे बेवकूफ बनाते थे एफडीए को, हाउ दे यूज्ड टू प्ले विद एफडीए टू इंश्योर दैट पूरी दुनिया में कोई इन पे ट्रस्ट न करे। एंड जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, यूएस यूज्ड टू बी अप्रोक्सीमेटली 75% मार्केट अप्रोक्सीमेटली ऑफ रेनबैक्सी। और हम तो कहते हैं जो यूएस में सुपरस्टार है वो तो यहाँ पर भगवान है। मैं अपनी बात ही कर रहा हूँ, तो आंख बंद करके रेनबैक्सी यूएस नंबर 1, तो इंडिया में और इट हैड ओनली अराउंड 15 to 18% मार्केट। इंडिया में उसके कैप्सूल में से बाल मिला, केमिस्ट के पास लेके गया, केमिस्ट ने कहा तुमने लगाया होगा, क्लेम करने आए हो। या कोई बहुत ही ईमानदार केमिस्ट होता था, वो यूज्ड टू रिप्लेस द बॉक्स। सेम बाल यूएस में मिला रेनबैक्सी के कैप्सूल में, केस फाइल हो गया। एंड देयर वर फ्यू मोर थिंग्स दे वर डूइंग, व्हाटएवर यू कैन थिंक ऑफ, दे वर डूइंग ऑल दोस थिंग्स। जो स्टीम रूम बना सकते हैं तो वो कहां तक जा सकते हैं? सो दैट्स द स्टार्टिंग पॉइंट। कि जैसा मनु जी ने मॉर्निंग में बोला, जब हम ऑडिट करते हैं वो ट्रस्ट द डॉक्यूमेंट्स, अनलेस अनटिल डॉक्यूमेंट ही बिल्कुल फेक है, मतलब अपफ्रंट ही लग रहा है कि डॉक्यूमेंट फेक है। अदरवाइज जब ऐसा सब कुछ कर दिया, स्टीम रूम तक बना दिया, थोड़ा ना कोई ऑडिटर डाउट कर पाएगा। सो दैट्स द शिफ्ट। एंड इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल, in the Coca-Cola system, we are also building that culture कि ऑडिट और कंट्रोल्स कागज के फेस वैल्यू पे नहीं है। We're designing many mechanisms, some of which I will be touching because for detailed discussion we need to have different forum. Maybe this certification course, I am one of the faculties where I take around 8-hour session and we actually go and practice and do all those things. But I will quickly touch upon some of those. हाँ जी, मॉर्निंग का टाइम है, कि कहीं लोग हम में से वॉशिंग मशीन भी चला के आए होंगे, बिकॉज टुडे इज नीदर ट्यूसडे नॉट थर्सडे। अगर आप घर में वॉशिंग मशीन चला रहे हैं, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपका कोई डेटा चोरी कर रहा है उस वॉशिंग मशीन पे। रिमेंबर, योर वॉशिंग मशीन डजंट हैव अ चिप, जैसे योर प्रिंटर्स हैव इट, राइट? योर प्रिंटर्स हैव मेमोरी, your printers are connected to network, your washing machine is not connected to network. ये भाई साहब, he has proven 2-3 months back in US that using this antenna, this round antenna, and by touching any of your device for 5 minutes, any device, so it can be this speaker as well, it can be my mic as well, my caller mic. By touching any
electronic device, just for 5 minutes, he can convert it into a data transmission device. And remember, sir, there is no network in the room. No Wi-Fi, no LAN, nothing in the room. Still, he can convert whatever machine, he can convert it into data transmission device. उसकी स्पीड बहुत स्लो है अभी, 1 सेकंड में 1 कैरेक्टर ट्रांसमिट होता है. But it's okay. Or at least possible तो हो गया है. Now he will work on only the speed part. So he proved. If you are, for example, SFIO या हमारा enforcement directorate, they all have so highly restricted data. अगर ये वाले भाई साहब यहाँ पर कंप्यूटर इंजीनियर बन के चले गए, भगवान ना करे आलोक जी का लैपटॉप में डेस्कटॉप में कुछ प्रॉब्लम हो गया, प्रिंटर में प्रॉब्लम हो गया, ये आपके कॉन्ट्रैक्टर के एम्प्लॉय बन के आ गए और इन्होंने 5 मिनट सर आपके लैपटॉप प्रिंटर पे या कहीं कुछ भी डिवाइस पर ऐसा कुछ किया, तो क्या करेंगे? चुप करके बाहर चले जाएंगे, बिल्डिंग के बाहर, आपके गेट के भी बाहर, वहां पर अपना ये एंटीना लगा लेंगे और आपको बिना पता लगे सारा डेटा स्लोली इन तक पहुंचना स्टार्ट हो जाएगा. You will get my presentation, and on the footnote you have everything. Link also of Google, the URL is also there. He's this company called Red Balloon Security, and his name is An Kui. अभी किया 2-3 महीने पहले. But he has done one very good thing also. बुरा आदमी नहीं है. उसने आज ही आपको प्रिपेयर कर दिया how to detect it. इंडिया में ये चीज आने में हो सकता है 2 महीने लग जाए, 2 साल लग जाए, बट आज ही उन्होंने आपको बता दिया कि भगवान ना करे ऐसा हो गया सर, स्पेशली फॉर यू, तो आप उसको डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं. मैं थोड़ा सा उस जमाने का हूं जब रेड और ब्लैक कलर के ट्रांजिस्टर हुआ करते थे, कान पे लगाते थे. थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं हूं, थोड़ा सा, क्योंकि तब दूरदर्शन उड़ जाता था कई बार और मैच आ रहा होता था, तो मेरे फादर साहब कान पे लगा के बैठते तो मैं उनके साथ बैठ जाता था टू हियर मैच का क्या स्कोर है. तो ये साहब कहते हैं वही वाला ट्रांजिस्टर दोबारा खरीदो, परचेज इट अगेन, सिंपल, एंड चेंज, ट्यून इट टू AM मोड. एक होता है AM, एक होता है FM. AM मोड पे ट्यून कर दो उसको, एंड देन यू रोम अराउंड द रूम वेयर यू हैव एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. जिस भी डिवाइस के पास जाके ये आपका AM या आपका ट्रांजिस्टर बीप करने लगेगा, it means that has been infected by someone who was influenced by this gentleman. तो आपको पता लग जाएगा कि भैया कौन सी मशीन को क्वारंटाइन करना है, पहले इसको साइड पे करें. तो अगर आपके घर में वॉशिंग मशीन चल रही है और वो टू कर रही है, तो मतलब वॉशिंग मशीन पहले तो बंद कर दीजिए और अपना लैपटॉप डेस्कटॉप सब बंद कर दीजिए. बिकॉज व्हेन योर कंप्यूटर स्क्रीन इज ऑन, देयर इज समथिंग कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसको भी कैप्चर किया जा सकता है. तो सबसे पहले मॉनिटर स्विच ऑफ कर दीजिए और लैपटॉप बंद कर दीजिए. घर पे तो नहीं होगा इतना रिस्की काम, ऑफिस में. So that's something very unique and eye opener which has come up. ONGC fraud. Manoj touched upon it. Anyone having idea what happened in ONGC? हाँ जी. हाँ जी सर. करेक्ट है सर. इस केस में हैकिंग नहीं हुआ था, एंड दिस इज अ वंडरफुल केस. फॉरगेट अबाउट ONGC, which every one of us, and forget about कि आपके पास फोरेंसिक असाइनमेंट आया है नहीं आया है. दिस इज फॉर यू, बिकॉज ये फ्रॉड आपके साथ भी हो सकता है. ONGC के साथ 197 करोड़ का हुआ था, आपके साथ 10 लाख का भी हो सकता है. Once I got to know of this case, I read about it. उसके 2 months later, I got an email from the partner of one of the big fours. 2 of the big fours are working for me. उनमें से एक big four के पार्टनर का मुझे ईमेल आया saying essentially the same thing कि राजीव, हमारा अकाउंट बिग फोर का, हमारा इंडिया अकाउंट शिफ्ट हो गया है XYZ कंट्री,
तो आपकी जो फीस है, हम जो फीस पे करते हैं, प्लीज रेमिटेड टू दैट अकाउंट। उस पर मैं 2 मिनट बाद आता हूँ, पहले ही बताता हूँ सर ये हुआ कैसे। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। आप में से कैन एनी वन ऑफ यू शेयर विद मी योर ईमेल अकाउंट अदर देन जीमेल याहू? आप में से किसी का है कहीं जीमेल याहू के अलावा? हॉटमेल। हाँ जी, हॉटमेल नहीं, हॉटमेल नहीं, मतलब ये जेनरिक नहीं, किसी कंपनी का होता है ना, जैसे आपकी खुद की सीए फर्म का हो। हाँ जी, क्या है आपका? Raj@chessy, how do you spell it? CHESSY. Please remember CHESSY group.com and इनका नाम है राज, आईडी है राज। नाम पूरा भी हो सकता है, राजीव गुप्ता भी हो सकता है, लेकिन इन्होंने ईमेल आईडी बनाया है raj@chessygroup.com। The important thing here is Chessy Group is a domain जो इनकी कंपनी ने खरीद रखा है। इस डोमेन में कोई भी आईडी इनके कंपनी का जो आईटी एडमिनिस्ट्रेटर है उसके अलावा कोई नहीं बना सकता है। अगर मैं चाहूं राजीव गुप्ता @chessygroup.com बना दो, पॉसिबल ही नहीं है, सिस्टम विल नॉट एक्सेप्ट इट। बट हियर्स द अपॉर्चुनिटी, इनकी कंपनी इनका डोमेन है CHESSY। मैं जाऊंगा जो डोमेन बेचते हैं उनको बोलूंगा CHESY group.com मुझे बेच दो, and that is available in the market. So I will legitimately, legal तरीके से Chessy Group डोमेन खरीद लूंगा with only one S missing। इनके और मेरे डोमेन में फर्क है सिर्फ एक S का। I will purchase that, and now I can create any ID which can be same as this Raj@chessygroup.com। फर्क सिर्फ इतना है, S मेरे में कम है, इनके में एक S ज्यादा है। Now I know his full name. Sir, आपका full name? राज लाकोटिया। आपने देखा होगा जब भी आप ईमेल आईडी बनाते हैं उसमें पहले बोलता है कि डिस्प्ले नेम क्या चाहिए, तो डिस्प्ले नेम में डालूंगा राज लाकोटिया, बट आई एम राजीव गुप्ता। सिस्टम को क्या पता था ना कोई वो वेबकैम लगा हुआ है। आई विल से डिस्प्ले नेम राज लाकोटिया एंड ईमेल आईडी इज raj@chessygroup.com। अब मैं ये जो जिस भी कंपनी से डील करते हैं, जिस पार्टी ने इनको पेमेंट करनी है, उस पार्टी को मैं ईमेल डालूंगा यूजिंग आईडी राज लकोटिया। उनको भी दिखाई देगा कि राज लकोटिया साहब की तरफ से ईमेल आया सेइंग सर 197 करोड़ जो आपने पेमेंट करना है, प्लीज ट्रांसफर इट टू दिस अकाउंट बिकॉज आवर बैंक अकाउंट हैज गॉट चेंज्ड। नाउ व्हाट दे विल सी ओके राज से मेल आया है एंड ईमेल आईडी इज आल्सो राइट। मतलब इफ समवन इज वेरी डिलिजेंट, सर आई एम टेलिंग यू, कोई भी चेक नहीं करता है। @ के बाद किस किसने चेक किया मेरे को बताइए? हाँ, गूगल लिखा है, जीमेल लिखा है, आप मोटा मोटा ये देख लेते हो, बट स्पेलिंग देखते हो मैंने तो कभी नहीं देखा, ना ही मेरी कंपनी में पहले किसी ने देखा। क्यों सर, एग्री करते हैं? कोई माइन्यूटली स्पेलिंग नहीं देखा। स्पेलिंग भी आज तक मैंने आपसे पूछ लिए, आपके आधे से ज्यादा कॉन्टैक्ट जो होंगे उनको पूछेंगे, करेक्ट। सेम थिंग हैपेंड विद ONGC। ONGC का डोमेन था ONGC.com, किसी ने डोमेन मार्केट से खरीद लिया OGNC.com, वो तो अवेलेबल है मार्केट में, और एग्जैक्टली वही किया जो मैंने अभी बताया, और ONGC ने पेमेंट कर दी 197 करोड़। वेंडर एक्सेस सर, वो तो बीच में कुछ ना कुछ कोलिजन रहा होगा, कोई बड़ी बात नहीं है सर। और ईमेल आईडी सर कौन सी बड़ी बात है, मेरे पास आज बड़े सारे कार्ड्स आए हैं, सबकी ईमेल आईडी, मेरा ईमेल आईडी आपको यहाँ मिल जाएगा, करेक्ट है ना? आप मुझसे आधा एक घंटा बात करेंगे तो आपको पता लग, वो बिग 4 का जो पार्टनर है उसका भी नाम पता लग जाएगा, उसको मैंने क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट देखा आपको वो भी पता लग जाएगा। बातचीत ही तो है सर, डॉक्यूमेंट होना चाहिए। बहुत आसान है। सोशल इंजीनियरिंग आपने डीसा में सीखा होगा कुछ साल पहले, ये सब चीजें यूज होती हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। हाउ वी एज एन ऑर्गेनाइजेशन, अब आप सोचेंगे राजीव ये तो फ्रॉड हो गया, क्या कर लोगे अब तुम, एंड why we as an organization are worried and why you should be worried is how to prevent the organization from this to happen। तो हम क्या करते हैं as an organization, और what my team does for these 4-5 countries। दुनिया में कोई भी फ्रॉड हो रहा है, हम भी ग्लोबल कंपनी है तो वो हमारे साथ भी हो सकता है, तो हम पार्शियलिटी नहीं करते कि इंडिया वाला ही हमारे से हो सकता है, बाहर वाला फ्रॉड हमारे पे नहीं हो पाएगा, गलत है।
तो दुनिया भर में जितने भी फ्रॉड हो गए हैं, वी स्टडी ईच एंड एवरी फ्रॉड एंड सी, और मान लेते हैं कि हमारी कंपनी में भी हो रहा होगा, हमें पता ही नहीं है सर। एक ना बड़ी कॉमन सेइंग है, अगर आपने वो सीख लिया और लाइफ टाइम याद रखा तो यू विल नेवर फॉरगेट दीज कॉन्सेप्ट्स। वन ऑफ माई colleague, senior colleague, in one of his seminar, he made this statement, I loved it. He said, in this world, there are two types of companies. One, in which frauds are happening. And second, those who don't know that frauds are happening. There is no third option. ऐसी कंपनी नहीं है जहां पर फ्रॉड नहीं हो रहा होगा। So it is only about awareness. You know or you don't know. That's it. So हम भी मानते हैं, इसी स्टेटमेंट पे हम भी काम कर रहे हैं कि ये फ्रॉड हमारे यहाँ भी हो रहा होगा। There are 10,000 employees in India which we manage, and 1,000 in 3-4 countries में, तो 14-15,000 employees plus temporary also we are there. उनको मैं गिनता नहीं। Approximately 20,000 employees, people are working to defy the controls which my team has deployed. हम 5-10 लोग हैं, along with 2 big fours, who are designing controls, and there are approximately 20,000 people on field who are finding ways to override. So we always have to be one step. कोशिश करते हैं. We don't know if we are one step ahead or not, and so false claim also if I make that. We try to learn at least what is happening outside, because that same information is available to those 20,000 people as well. इससे पहले कि वो यूज करें, हम पहले एक वॉल खड़ी कर देंगे। So what we do, the moment we get to know of any such fraud happening anywhere in the world, we see अगर ये हमारे साथ हो गया होता, तो कल से improve करने के लिए क्या? So we change our controls. अगर हमें कुछ segregation of duties लेके आना है, एक additional level of approval बीच में लेके आना है, whatever we need to do, we design controls. 2 type of controls. One, preventive. होने ही नहीं देंगे। सेकेंड, भाई हम भगवान तो हैं, फिर भी हो गया तो डिटेक्टिव। फॉर दैट वी यूज डेटा एनालिटिक्स, वी यूज टूल्स लाइक ACL and others. Python is something new which we are using now. So there are 3 vendors who are working with us, where we say कि अगर ये fraud हो गया, so these are 4-5 data sets which are available. तुमने इनको यूज करके कोई ऐसी मेरे लिए अलर्ट बनाना है ताकि मैं चाहे कैलकाटा में इधर सेशन ले रहा हूं या कहीं भी हूं, इंडिया में या आउटसाइड इंडिया, आई गेट एन अलर्ट द वे क्रेडिट कार्ड कंपनी सेंड्स यू anomaly detection. We have been working on these automation for last 6 years now. There are many controls which have been automated. Goes every day, and you know time investment, 15 seconds time. 15 seconds of my team member per analysis. Sir, 15 seconds. He can effectively use those 15 seconds also. So वो 15 second backend में चल रहा है. He can work. He can do his work. So that's how we are building the culture and using whatever fraud related cases which are available in the market to see if it is happening in my organization, how I can prevent as well as detect. रेनबैक्सी ने साइकोलॉजी के साथ बहुत जबरदस्त तरीके से खेला। उसका मेरे पास एक क्विज है, दैट्स अ वेरी ओल्ड क्विज, हमने स्कूल में खेली थी। somehow I could correlate it with how fraudster make fun of us. आप में से काफियों ने वो खेली होगी बचपन में, तो प्लीज आप भी इंजॉय करिएगा। डोंट शेयर विद योर कॉलीग्स कि इसका क्या आंसर होगा या क्या होगा। आप भी इंजॉय करिए, लेट अदर्स ऑल्सो इंजॉय एंड कनेक्ट विद हाउ फ्रॉडस्टर प्ले विद द ह्यूमन साइकोलॉजी। सो लेट्स प्ले। प्लीज थिंक ऑफ अ डिजिट फ्रॉम 1 to 9। बताना नहीं है, आप सोच लीजिए। इट्स अ वेरी ओल्ड क्विज, मजा आएगा, यू विल बी एबल टू कोरिलेट। सोचिए सर, उस डिजिट को 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। इफ यू गॉट 2 डिजिट्स, अगर उसमें 2 डिजिट आ गए हैं, उन डिजिट्स को आपस में प्लस कर लीजिए।
अपने तक इतनी सी, मुझे पता है काफी में many people would be aware of it, but we'll see how it gets connected. हाँ जी सर, आपने आपको आपस में प्लस कर दिया, जो भी आया उसमें से 5 माइनस कर दिया, 5 माइनस। अब जो भी आपके पास बचा उसको रिप्लेस कर दीजिए विद ए बी सी डी ई एफ जी एच। अगर 1 बचा तो ए, 2 बचा तो बी, 3 बचा तो सी एंड सो ऑन। आगे मैडम आगे, वॉट एवर अल्फाबेट यू गॉट उससे एक कंट्री का नाम सोचिए, कोई भी कंट्री, मुझे बताने की जरूरत नहीं, बट इट हैज टू बी कंट्री, नो स्टेट नो सिटी, कंट्री। सर हो गया कंट्री, जो भी कंट्री का नाम सर आपने सोचा हुआ है अभी, उसका लास्ट डिजिट सोचिए क्या है, लास्ट अल्फाबेट बताना नहीं है, सोचिए। उससे कोई एनिमल सोचिए, बताना नहीं है, कोई भी एनिमल, बट इंसेक्ट ना हो, इंसेक्ट या बर्ड नहीं चाहिए, एनिमल चाहिए कोई भी। हाँ जी सर हो गया सबका? सर एनिमल आ गया सर, लास्ट मेरे को बताना नहीं है। अब जो भी एनिमल आपने सोचा सर, उसका लास्ट अल्फाबेट सोचिए, उससे कोई भी कलर सोच लीजिए, बताना नहीं है, कोई भी कलर। सोच लिया कलर? हाँ जी कलर हो गया जी। आप में से कितनों ने ऑरेंज कंगारू देखा है? आप सबने देखा है? देखा आपने ऑरेंज कंगारू? आपकी इमेजिनेशन में आया, मेरी भी इमेजिनेशन में आया, बाकियों का ऑरेंज कंगारू नहीं आया था बिकॉज आपने दुबई सोचा होगा। दुबई इज नॉट अ कंट्री। हाँ जी कितनों ने दुबई सोचा था? डी से? हाँ डेनमार्क ही सोच सकते हैं सर, दूसरा ऑप्शन ही नहीं। अब देखिए, अब मतलब इस तरह की आपने बड़ी सारी क्विज खेली होंगी ऑन व्हाट्सएप। नाउ द ब्यूटी ऑफ दिस क्विज, आप सबको लगा कि राजीव गुप्ता इज गिविंग अस सो मच फ्लेक्सिबिलिटी, ही सो ट्रांसपेरेंट। हमें सबको सिलेक्ट करने के लिए बोला कोई भी डिजिट ले लो, कोई भी कंट्री ले लो, और हमने डिजिट बताई के लिए बोला कोई भी अल्फाबेट ले लो, उसको मतलब कंपेयर रिप्लेस कर लो। टेक एनी डिजिट, टेक एनी कंट्री, टेक एनी कलर। तो आई गेव यू फील लाइक अ फ्रॉडस्टर, यू आर एन ऑडिटर, नाउ प्लीज रिप्लेस योरसेल्फ एज। तो आपको क्या लग रहा है? राजीव गुप्ता इतना ट्रांसपेरेंट आदमी, कह रहा है सर जो आपको ठीक लगता है करिए, जो आपको ठीक लगता है करिए, आपको जो सैंपल चाहिए मुझे बताइए, मैं वो दे दूंगा सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो डॉक्यूमेंट चाहिए प्लीज कोरिलेट इट विद इंडेक्सी आल्सो। एफडीए को कभी उसने ये नहीं बोला कि मेरे पास मैं सैंपल नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि छोटा प्लेयर नहीं था। दे सेड सर अब बताइए तो सही, सुबह मिल जाएगा, हम थोड़ा 7 दिन लगाएंगे बनाना, थोड़ा सैंपल है, अब बताइए तो सही कौन सा सैंपल लेंगे। सो दे गेव एग्जैक्टली सेम कंफर्ट जो मैंने अभी आपको दिया कि आप ही तो चूज कर रहे हैं सर, मैं कौन होता हूं। एंड देन एट द एंड यू आर अमेज्ड, जिनको ऑरेंज कंगारू है, यार ये तो कमाल आदमी। कमाल कहां सर, एक चीज तो मैंने अपने हाथ में रखी हुई थी ना, सेम चीज फ्रॉडस्टर करता है। वो एक ऐसी चीज अपने हाथ में रखता है कि आप घूम फिर के उसी डॉक्यूमेंट पे आएंगे या उसी सैंपल पे आएंगे जो उसके पास पक्का है। ही हैज द रियल डॉक्यूमेंट, दैट्स द डॉक्यूमेंट जो आप जुटला नहीं पाएंगे एज ऑडिटर। ही एंश्योर्ड दैट, एंड दिस इज द गेम ऑफ फ्रॉड। आपको कंफर्ट पूरा मिलता है, लेकिन ही एंश्योर्स कि आपको घुमा घुमा के वहीं पे लेके आएगा जो उसका फोटे है, जहां पर उसका ग्रिप स्ट्रांग है। आप प्रूव नहीं कर पाएंगे कुछ। जस्ट फाइनल वर्ड टू क्लोज दिस पीस। एफडीए क्या बेवकूफी करता था, बिकॉज एफडीए के साथ भी उसने इतनी मीठी मीठी बातें करके प्रूव कर रखा था वी आर द वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। तो एफडीए वाले जब भी सर टिकट बुक कराते थे, 2-3 महीने पहले यूएस से इंडिया के लोग टिकट बुक करा लेते हैं, तभी फोन करके बताते सर वी आर कमिंग फॉर योर ऑडिट। एफडीए वाले, इट्स प्रूवन, इट्स ऑन रिकॉर्ड्स। इंडेक्सी क्या बोलता था, अरे सर नहीं मेरे पास तो कागज नहीं है, ऐसा तो ना बोलता था। सर वी आर मोस्ट वेलकम, वी आर एवर रेडी सर फॉर ऑडिट।
वी हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स, ऑल द एवरीथिंग इज एवर रेडी सर, आप कल जाइए, ऐसी बातें करते हैं। तो दिनेश ठाकुर ने बोला अरे सर आप क्यों ऐसा कर रहे हो, एफडीए को बोला आप छापा मारो ना, यू डोंट टेल देम, इनसे पैसा थोड़ा लेना, टिकट का रिइंबर्समेंट थोड़ा लेना आपने, आर यू लुकिंग फॉर रिइंबर्समेंट ऑफ टिकट, नो, फिर बताने की क्या जरूरत है, आपको क्या कोई यू नीड समवन टू पिक यू फ्रॉम द एयरपोर्ट, नो, फिर 2 महीने पहले क्यों बताना, आप पहुंचो सीधा। एंड आई थिंक इन 2011 और 13 they changed the approach, तब जाके सारा मामला, so whatever documents दिनेश ठाकुर है वो सारे वैलिडेट भी हो गए with the real practice at Rendex. So we move to next one. Sir, ACFE gives this award to I think 2 or 3 people across the globe, and there is a very small cash component. But the best thing which happened with Dinesh is when Rembexy pleaded guilty and agreed to pay $600 million. I think uska 10-15% was given to him because he was working day in day out for last 8 to 10 years with FDA to prove कि he is right and Rembexy is doing something wrong. तो he was पता नहीं बेचारा जॉब कर रहा था नहीं कर रहा था, तो I think it's a reasonable compensation for a lot of torture. In fact, it had happened with him. अगर मैं उसमें घुस गया तो पूरी डिस्कशन Rembexy की हो जाएगी. It's better you look at Google. A lot of torture happened. So I think that's a reasonable compensation he got for all those years. ATM fraud. पाकिस्तान में हुआ ये, and it's an amazing example of कि अगर आपने वीसा करके उसको यूज नहीं किया तो करोड़ों का नुकसान हो सकता है. Are you all aware of how ATM machine works? Anyone who is not aware, I will take 2 minutes to explain. Explain? Okay. How it works? Suppose outside this hotel, there is an ATM machine of, say, HDFC, but my bank is in, say, State Bank of India. My account is in State Bank of India, but नीचे HDFC के ATM है. But क्या फर्क पड़ता है? Today, in these days, there is no transaction fees for inter-company, inter-bank ATM usage. So I will go down and I will ask, or I will put in key कि मेरे को 10,000 rupees चाहिए. That instruction. So this is that ATM machine down in this hotel. This instruction goes to ATM switch. ATM switch किसका? जिसकी ATM पे खड़ा होना है, HDFC बैंक का. Switch इसलिए चाहिए होता है because वो कार्ड नंबर स्टडी करके और जो मैग्नेटिक स्ट्रिप में जो भी और इंस्ट्रक्शन होती है स्टडी करके देखता है कि भाई साहब अकाउंट कहाँ पे है, पैसा देना है नहीं देना है, someone has to validate. So he acts as a router कि कौन से बैंक को रिक्वेस्ट भेजें वैलिडेशन के लिए. सो जब वो रीड करता है तो कहता है ओके इनका अकाउंट तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है. सो इट सेंड्स दिस रिक्वेस्ट टू कोर बैंकिंग सिस्टम, द मेन सर्वर ऑफ कौन सा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जहां पर मेरा अकाउंट है, टू वैलिडेट सच में का 10,000 रुपीज है भी या नहीं है, या मंथ एंड आ गया तो सिर्फ 2,000 ही बचे हैं. Whatever instruction server gives, it comes back to ATM switch because this instructions keeps on coming to the core server. अब किसी को ये भी तो पता होना चाहिए राजीव गुप्ता खड़े कहाँ पे हैं. पूरे दुनिया में HDFC बैंक की हजारों ATM मशीन्स हैं. अब सर्वर ने जो वापस रिक्वेस्ट भेजनी है, एक्सेप्ट और रिजेक्ट व्हाटएवर, दे नीड टू नो अरे रिक्वेस्ट आई कहाँ से थी. तो वो रिक्वेस्ट, दैट इज व्हाई इट सेंड्स इट बैक टू ATM स्विच, जो कहता है ओके ये यहाँ पर कैलकाटा में खड़े हैं आज और इस वाले ATM में वहां पर रिक्वेस्ट आ जाती है एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, और उस हिसाब से कैश आ जाता है या वो स्लिप निकल आती है एरर कोड के साथ. दिस इज हाउ ATM मशीन वर्क्स. मैंने 2 मिनट इस चीज को समझाने में लगाए, ATM मशीन 3-4 सेकंड में कर देती है सब काम. आपने देखा होगा, आपने कोड डाला, पिन डाला, 2-3 सेकंड लगते हैं, चक 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 चक, या तो आवाज आती है या एक स्लिप निकल आती है एरर कोड के साथ, खत्म. ये सब कुछ इतनी जल्दी हो जाता है. क्वेश्चन है सर? अब आते हैं फ्रॉड क्या हो गया. गलती पहले बताते हैं गलती क्या हो गई. ये जो ATM, जो ये बैंक है पाकिस्तान का ACB बैंक लिमिटेड, इन्होंने इंटरफेस ले रखा था एक थर्ड पार्टी से.
इंटरफेस एटीएम मशीन और एटीएम स्विच के बीच में जो डेटा कम्युनिकेट करने के लिए जो चाहिए होता है वो इंटरफेस अपग्रेड करना था उस थर्ड पार्टी में। पैचेस लगाते हैं ना, आपके मोबाइल में भी पैचेस आते रहते हैं, विंडोज में भी पैचेस आते रहते हैं, हॉट फिक्सेस, पैचेस एंड ऑल दोस। गलती ये हो गई कि पाकिस्तान में कोई आपके जैसा डीसा क्वालिफाइड नहीं था, तो किसी ने आईटी टेस्टिंग करी नहीं इस इंटरफेस की, अपग्रेडेड इंटरफेस की, कि ये भाई साहब ठीक चलेंगे भी कि नहीं चलेंगे। और इसमें एक प्रॉब्लम थी, जिस प्रॉब्लम का मैंने नाम दिया है सेंटा क्लॉज। क्योंकि जैसे 25 दिसंबर को बच्चे जो भी बोलते हैं ना घर में, पापा वो डॉल को सेंटा क्लॉज को बोलना मुझे डॉल चाहिए, मुझे ये बार्बी चाहिए एंड ऑल दोस थिंग्स, तो हम कहते हैं हाँ हम सेंटा क्लॉज को बोल देंगे, वो ले आएंगे, लेके तो हम ही आते हैं। व्हाट वी एक्चुअली एंश्योर कि बच्चा जो मांग रहा है वो मिल जाए। सो ये इंटरफेस ने यही काम किया। ये इंटरफेस किसी भी एरर कोड को समझ नहीं पाता। ये कहता था नहीं अब तो 25 दिसंबर है, जो मांगो मिलेगा। एनी एरर सेंट बाय द सीबीएस कि भाई साहब के पास पैसे नहीं हैं, वो फिर भी इसको एक्सेप्ट कर देता था। क्यों? क्योंकि एरर कोड समझ नहीं पाता था। अपग्रेड, हॉट फिक्स। अब सुनिए हुआ क्या, राजीव गुप्ता को जेन्युइनली 10,000 रुपए चाहिए। एटीएम मशीन के पे खड़े हुए, टक 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 बटन दबाया, सीबीएस ने बोला नहीं है, 9,000 रुपए ही इनके पास, तो रिजेक्ट हो जाती है रिक्वेस्ट। इसने तो रिजेक्ट रिक्वेस्ट भेजी स्विच को, स्विच तक ठीक रिक्वेस्ट पहुंच गई, लेकिन स्विच और मशीन के बीच में इंटरफेस तो सेंटा क्लॉज था। वो कहता था नहीं 25 दिसंबर को बच्चों को नाराज नहीं करना है, जो मांगो दे देंगे। तो 10,000 रुपए मिल गए। अब यहां पर हो गई प्रॉब्लम ये है कि वो पाकिस्तान में जो भाई साहब थे मेरी जगह पे, ही हैड अ डाउट कि मेरे पास 10,000 रुपए नहीं थे, थोड़ा कम तो था, लेट मी रीवैलिडेट। क्योंकि अगर मेरे पास 10,000 रुपए नहीं थे और गलती से आ गए, तो अब तो एक पैसा भी नहीं मिलना चाहिए। करेक्ट है ना सर? अब मैं अगर दोबारा यूज करूंगा एक पैसा भी नहीं मिलेगा। सो ही यूज्ड इट अगेन। 10,000 रुपीज मांगे, सीबीएस सर्वर ने बोला रे भाई पहले भी तो मना किया है, दोबारा मांग रहे हैं। उसने रिजेक्ट कोड भेजा, लेकिन एटीएम स्विच ने जब एटीएम मशीन को रिस्पॉन्स भेजा तो उसने कहा ओके। तब इन भाई साहब को हो गया अरे भाई साहब कुछ तो प्रॉब्लम है, यहाँ तो पैसा दे देना तो निकल रहा है। तो आप सोचिए कितने तक का उसने घपला किया होगा, क्या कर सकता है, कितना हो सकता है सोचिए। लिमिट्स भी तो होती है ना कुछ। नहीं सर 4-5 लाख का, 25,000 की तो डेली कैश विड्रॉल लिमिट होती है। नहीं पहले बताइए, 25,000 की एटीएम कैश की लिमिट होती है। अगर आप प्रिविलेज्ड कस्टमर्स हैं तो 1 लाख रुपए की लिमिट होती है। बट एरर कोड तो नहीं आ रहा है ना, तो 25,000 पे कैसे रुकेगा वो। तो जैसे वो 25,000 का सर्किट को पार करेगा, तो सीबीएस चिल्ला के बोलेगा अरे भैया मत दो, 2 बारी पहले भी मना किया है। लेकिन उसने तो एरर कोड समझना ही नहीं, उसने फिर पैसा दे दिया। अब आप सोचिए कितना वो फ्रॉड कर सकता है, मतलब कि फ्रॉड तो नहीं, कितना पैसा निकाल सकता है। कितने पैसे हैं मशीन, जितना एटीएम में होगा 10 लाख 15 लाख, तो 10-15 लाख रुपए के लिए मैं इतना टाइम से क्यों डिस्कशन कर रहा हूँ। अलग अलग एटीएम, वो भाई साहब ने स्कूटर स्टार्ट किया होगा और दे भाई साहब जितने भी इस एरिया में जितने भी एटीएम है एचडीएफसी बैंक के सब लपेट लिए। लेकिन ही वॉज एन एंटरप्रेन्योर, तो उसने क्या किया, स्कूटर तो स्टार्ट किया, उसके बाद मोबाइल भी था। अपने दोस्तों को कहा आज ही आज में पार्टनरशिप करते हैं 50-50। मैं ऐसा आइडिया बताता हूँ, आज से ही लाखों रुपए कमाना स्टार्ट। 50% पार्टनरशिप करता तो ठीक है, सब मान ले। ये भाई साहब ने स्कूटर पे दे दनादन फोन पे फोन सब दोस्तों को बता दिया ये एरिया मेरा, वो एरिया तू ले ले, उस तरह से। प्रॉब्लम आ गई ग्रीन। जिन भाई साहब को इन्होंने फोन किया वो कहते मैं भी तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग करूंगा, मैं सारा का सारा मेहनत पूरी मैं करूं, तो मैं कोई वो थोड़ा ना लेबर थोड़ा ना सारा मैं करूं 50% को दे दूं, मैं भी सब कॉन्ट्रैक्टिंग करूंगा। इसको क्या पता कौन सा कोई एग्रीमेंट साइन किया, नो एग्रीमेंट। सो उसने भी स्कूटर स्टार्ट किया, दे फोन पे फोन, ग्रीड पे ग्रीड, सब कॉन्ट्रैक्टिंग करते करते लोगों ने ये देखना ही बंद कर दिया कि मैं जिसको फोन मिला रहा हूं देख तो लो कौन है। तो एक आदमी ने जब फोन घुमाया तो वो लेबरर था जिसने उसकी दीवार खड़ी करी थी घर में। मजदूर होता मजदूर का फोन नंबर उसको भी मिला दिया, बट अब तो फिर फोन ही करना है 50% पार्टनरशिप के लिए। अब मजदूर ने भी सुना, उसने कहा तेरी 50% ठीक है कोई बात नहीं, तो लाखों रुपए पूरा एटीएम मेरा। एंड ही वाज अ नेटिव ऑफ अ विलेज इन पाकिस्तान which was one of the poor villages.